Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, everyone, and a very warm welcome to today's webinar hosted by Mer Sparkles. We are delighted to have such an enthusiastic audience joining us from different places to learn, connect, and grow together. At Mer Sparkles, we believe that knowledge shared is knowledge multiplied. And today's session is another step toward empowering healthcare professionals, students, and aspiring learners with the valuable insights from experts in the field. Thank you all for taking the time to be here. We truly appreciate your presence and participations. Before we begin, let me briefly introduce myself. My name is Arham Kamar, and I will be your host for today's session. Today's webinar topic is Mastering the Interview, the Ultimate Blueprint to Getting Hired. And we are honored to have with our esteemed speaker, Dr. Afia Muhammad Amin, who brings extensive experience and expertise in this area. Our speaker today has made remarkable contributions in the field of pharmacology, clinical researches, virtual event director, with a strong background in the AOID director at MedSparkles, co-founder at YMN, gold medalist, and public speakers. She has inspired many learners and professionals through her work and guidance, and we are excited to hear her insights and practical knowledge during these sessions. Before this is for audience. Before we move ahead, here are a few quick instructions for everyone. Please keep your microphones muted throughout the session. You may drop your questions in the chat box during the webinar. We will have a dedicated Q&A session at the end. Kindly stay still till the conclusion to receive complete takeaways from today's discussion. इसके साथ आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट दी जाएगी जो कि सर्टिफिकेट्स और क्विज के बारे में है। आप लोगों को रात 11 बजे यूट्यूब का लिंक मेट स्पार्कल जॉब्स एंड स्कॉलरशिप व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। उस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्विज का लिंक, सर्टिफिकेट का लिंक और उसके साथ पासवर्ड मौजूद होगा। क्विज कंप्लीट करने के बाद पार्टिसिपेंट्स व्यू सर्टिफिकेट्स पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन मैं आपको इस चीज़ का रिमाइंड दे दूं, सर्टिफिकेट और क्विज के लिए रात 11 बजे मेट स्पार्कल के जॉब एंड स्कॉलरशिप व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। उस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्विज का लिंक, सर्टिफिकेट का लिंक और उसका पासवर्ड मौजूद होगा। क्विज कंप्लीट करने के बाद पार्टिसिपेंट्स व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। And now, without taking much more time, let us begin today's insightful session. Please join me in welcoming our speaker, Dr. Afia Muhammad Amin, registered pharmacist. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. All right, so thank you so much, Arham, for the warm welcome and the introduction. Now let's begin our today's webinar that is related to interview. तो आज की इस सेशन का थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है और ऐसे बहुत से लाइक स्टूडेंट्स होते हैं जो समझते हैं जैसे ही इंटरव्यू का वर्ड आता है दे थिंक लाइक वो परेशान हो जाते हैं, अच्छा हमारा इंटरव्यू होगा, अच्छा उसके बाद सिलेक्शन होगी। तो आज का जो वेबिनार है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के अराउंड जो है रिवॉल्व करेगा, दैट इज इंटरव्यू, मास्टरिंग द इंटरव्यू, द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट टू गेटिंग हायर्ड। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई जस्ट वांट टू नो कि आप में से ऐसे कितने जो है स्टूडेंट्स या मेंबर्स हैं, यहाँ पे अटेंडीज हैं जिनको ये लगता है कि जैसे ही वो प्रेजेंटेशन का नाम आता है या प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, सामने खड़े होते हैं तो वो अपने पॉइंट्स भूल जाते हैं या फिर वो इंटरव्यू में अपेयर हुए हों, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो।
कि जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो वो बिल्कुल बेसिक चीजें भी इंटरव्यूअर के सामने, पैनल के सामने भूल गए हों। ऐसे कितने लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू दोनों में से कोई भी? तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स यस और मी, इस तरह से करके आप कुछ लिख लें। ऑल राइट, सो दैट इज द थिंग एंड यू ऑल आर एट द राइट प्लेस। और आज के इस सेशन के बाद यू वॉन्ट बी अमंग दूज 90% लोग जिनका लाइक वो 90% अफराद जिनको इंटरव्यू के नाम से डर लगता है या वो घबरा जाते हैं। आप उनमें से नहीं होंगे। यू विल बी अमंग दूज 10% पीपल हु विल नो कि किस तरीके से इंटरव्यू को जो है देना है, हाउ यू कैन एस एन इंटरव्यू। सो यू विल बी एबल टू डू दैट आफ्टर दिस वेबिनार इंशाल्लाह। So this is not going to be a boring lecture या मैं यहाँ पे just slides आप लोगों को दिखा रही होंगी, बहुत टेक्निकल टर्म्स बता रही होंगी and all this. No, this is going to be an interactive one. हम यहाँ पे कुछ लाइव एक्टिविटीज भी करेंगे। इसके साथ साथ लास्ट में जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, आप लोगों का एक मॉक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। सम ऑफ यू विल बी सिलेक्टेड और उनका लाइव मॉक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। सो द की पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे जो भी गाइडेंस दी जाए, जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं, you have to listen carefully so that you can participate in such activities as well. All right. So before starting this webinar, let me introduce myself. तो जैसे हमने मेरे बारे में बताया, basically I am a pharmacist and I am a lecturer in pharmacology and I have done my graduation from University of St. Jamshoro. और इसके अलावा currently I am working at the Mad Sparkles as the virtual events director and director of the academic operations and innovations department as well. So I believe this is quite enough for today's webinar, or you can follow me on Instagram link as well. All right. So just consider कि अगर आप लोग अपना ईमेल खोलते हैं and you receive an email कि आपका कल इंटरव्यू है, ठीक है? So right now before attending this webinar, आप लोग on a scale of 1 to 5 अगर आप रेट कर सकें चैट बॉक्स में कि how much prepared you are currently for the interview from 1 to 5. 1 means poor यानी आप ready नहीं हैं, not ready, and 5 means you are completely ready for the interview. All right. So most of you are typing 3. Average, terrified, 4.5, great, 3, 1, 2. All right. So I will be asking the same question in the last as well. तो आप लोगों को खुद पता चले कि आप लोगों ने यहाँ कुछ सीखा या कुछ भी नहीं सीखा। ओके तो जब इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू इज नॉट लाइक कि आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो। नो, इट इज बेसिकली टू यूज दैट पर्टिकुलर नॉलेज, टू यूज दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी, पोटेंशियल को आप राइट टाइम पे यूज करना जानते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करना जानते हो, अपने काम को, अपनी क्वालिटीज को, अपने स्किल्स को। ठीक है, तो अगर आप में ये क्वालिटी है टू टेल एनीवन कि आप कितने पोटेंशियल रखते हैं, दिस मीन्स यू आर अ गुड चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर पैनल, फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉब इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, कोई एक टेस्ट नहीं है, बट योर एबिलिटी टू यूज इट एट द राइट टाइम। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल शुड कंसिडर। तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि अच्छा, हमने स्टार्ट में पूछा हाउ मच लाइक टेरिफाइड और सबने जो है बताया, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इंटरव्यू से भागते हैं या स्टूडेंट्स को इंटरव्यू से डर लगता है, वो घबराते हैं, आखिर ऐसी बात क्या है? तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फेयर ऑफ रिजेक्शन और फेयर ऑफ जजमेंट। ठीक है, हम सोसाइटी के प्रेशर में या फिर आप कह लें कि रिजेक्ट होने के प्रेशर में हम इंटरव्यू से घबरा रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास सोसाइटी में आई लाइक, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो हमारे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसे टीचर थे, एक ही टीचर थी जो ये कहती थी कि टॉपर्स को कभी भी जॉब नहीं मिलती। ठीक है, तो व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई हैड दैट पॉइंट इन माय माइंड, आई हैड सम रिमोट जॉब्स, बट टू सिक्योर अ जॉब एज अ फार्मासिस्ट मेरे माइंड में एक ही सेंटेंस घूमता था कि टॉपर्स को जॉब नहीं मिलती, टॉपर्स को जॉब नहीं मिलती। लाइक जैसे अरहम ने स्टार्ट में बताया दैट आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट,
तो मेरे माइंड में वही बात घूम रही होती थी कि पता नहीं मैं यहाँ सीवी जॉब अगर मैं ड्रॉप करती हूँ या अप्लाई करती हूँ, क्या मुझे वाकई जॉब नहीं मिलेगी कि मैं टॉपर हूँ। तो द रिजल्ट्स वर अपोजिट टू दैट सेंस, ठीक है। मुझे जॉब ऑफर्स रिसीव हुई, ठीक है, और दैट मेक मी फील कंटेंटेड कि ठीक है आई एम कैपेबल। और ऐसा सिनेरियो नहीं है जैसा किसी एक पर्सन ने आपको बताया हो, जैसा सोसाइटी ने आपको पोर्ट्रे किया हो। जरूरी नहीं कि आपका वही एक्सपीरियंस रहे, ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपना एक्सपीरियंस खुद देखना है, किसी की बातों में नहीं है, रिजेक्शन या जजमेंट के बारे में नहीं है। इवन इफ अगर मैं बताऊं कि जहां मैं अभी जॉब कर रही हूँ एज अ लेक्चरर, सो आई हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। ना मैंने किसी स्कूल में टीचिंग की थी, ठीक है, ना मैं कोई होम ट्यूशन देती थी। आई हैड रिमोट जॉब्स थी, बट लाइक ऑनलाइन वेबिनार्स कंडक्ट करवाना या कंटेंट राइटिंग की ऑनलाइन जॉब्स एंड ऑल। लेकिन टीचिंग का मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। व्हेन आई वेंट फॉर दी डेमो, तो मैंने घर पे लाइक घर पे से जाने से पहले मैंने घर वालों को कह दिया था मेरी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ठीक, मैंने किसी को ज्यादा इन्फॉर्म नहीं किया अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है, डेमो की कॉल आई है। आई केप्ट इट कॉन्फिडेंशियल बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ जजमेंट, ठीक है। बट आई वेंट देयर प्रिपेयर्ड, मैं पूरा प्रिपेयर होके गई। एंड यू वोंट बिलीव दैट आई सिक्योर्ड दैट जॉब बिकॉज मुझे था एक लेक्चरर, एक यूनिवर्सिटी लेवल के लेक्चरर के लिए मुझे बगैर एक्सपीरियंस के कोई क्यों ही अपॉइंट करेगा, ठीक है। लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस खुद जो है वो महसूस करते हैं, खुद अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि विदाउट प्रिपरेशन आप चले गए एंड यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू एस एन इंटरव्यू। नो, यू आर नॉट गोइंग टू एस इट दैट वे। ओवर थिंकिंग द आंसर्स, कि आप आंसर्स के बारे में बहुत ज्यादा सोच के बहुत ज्यादा एक्सेजरेट करने लग जाएं और आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं हो, ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट्स मैच कर जाते हैं, दिस मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू एस एन इंटरव्यू। आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। सो मोस्ट पीपल डोंट फेल द इंटरव्यूज बिकॉज दे कांट, दे फेल बिकॉज दे डोंट प्रिपेयर। सो द की इज प्रिपरेशन। और वो कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, वो आज हम यहाँ पे इस वेबिनार में सीखेंगे। What employers actually look for. तो अगर मैं बताऊं that when I went for an interview at the Aga Khan Hospital Karachi for the residency training program, तो मेरा प्रायर जॉब रिलेटेड वो फर्स्ट इंटरव्यू था, ऑन साइट इंटरव्यू। बट बिफोर दैट मैंने बहुत से ऑनलाइन इंटरव्यूज दिए हुए थे। लाइक अगर मैं मैडिस पार्टनर्स की बात करूँ, यहाँ का जो है ऑनलाइन इंटरव्यू दिया हुआ था। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी क्लाइंट्स के लिए पहले आपका इंटरव्यू होता है, देन दे हायर यू फॉर दैट। तो मेरा रिमोट एक्सपीरियंस था, बट आई वॉज वेरी फर्स्ट इन दैट सेंस कि मैं ऑन साइट देने गई थी, ठीक है। सेकेंडली ये कि मैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रह चुका था कि मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे। एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि मैंने कैंडिडेट्स को ये सुना था कि वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं कि मैं एज ए लीडर उनको अपॉइंट नहीं कर रही अपनी टीम के अंदर, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके जब मैं अपने पहले इंटरव्यू में अपेयर हुई, मैंने उन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड किया, ठीक है। तो आज के इस वेबिनार में उन सब चीजों को, उन सारे पॉइंट्स को ही मैंने समराइज किया है सो दैट यू ऑल कैन लर्न एज वेल। So what employers actually look for, they look for the communication, they look for the confidence, they look for the attitude, problem solving, adaptability. ठीक है, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। आपको आता बहुत कुछ है, आपके पास स्किल्स बहुत ज्यादा है, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे बहुत से प्रोफेसर आपने खुद की यूनिवर्सिटी में देखे होंगे जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट देयर नॉलेज टू यू, ठीक है। तो इसका मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है। कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपके सामने कोई टीचर आके खड़ा हो जो है मतलब वो कॉन्स्टेंटली शिवर कर रहा हो और उससे बोला नहीं जा रहा, उसके वर्ड्स फंबल कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है क्या आप वो सब्जेक्ट उनसे पढ़ सकेंगे? नहीं। लाइक वाइज जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो पैनलिस्ट होते हैं, दे लुक फॉर दीज क्वालिटीज इन द कैंडिडेट्स एज वेल। सो हियर आर सम मिथ्स एंड सम फैक्ट्स, ठीक है। इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसी बहुत सी कहानियां होती हैं जो हम सुनते हैं, लेकिन असल में रियलिटी क्या है,
ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं, जब वो इंटरव्यू में आते हैं दे आर प्रिपेयर्ड विद एन स्क्रिप्ट। वो बस वो रट्टा लगा कर आए हुए होते हैं। जैसे ही उनसे पूछा जाता है ऐसा लगता है कि बस उन्होंने फौरन से वो जो रटा हुआ था वो सब बोलना शुरू कर दिया है। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू डू इट दैट वे, यू हैव टू कीप इट नेचुरल। आप अपने इंटरव्यू में जरूरी नहीं है कि इंग्लिश यूज करें, पूरा आप याद करके गए वही इंग्लिश बोलते रहेंगे। देखिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में तो ज्यादा फोकस ना करें। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश पे फोकस करते करते अपना मेन पॉइंट भूल जाते हैं। ठीक है, आपको होता है कि मैं सारी बातें इंग्लिश में करूँ, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आई विल बी अपॉइंटेड हेयर। लेकिन नहीं, उसके अपोजिट साइड आप वो भूल जाते हैं आप बोलना क्या चाह रहे थे, व्हाट वाज द मेन की पॉइंट। ठीक है, तो परफेक्ट इंग्लिश इजंट रिक्वायर्ड, इट्स अ मिथ कि आपको इंग्लिश में सारा इंटरव्यू देना है। नो, एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। नो, आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली। नो नर्वसनेस इज अलाउड, नो, इट्स ओके टू फील नर्वस बट टू एन एक्सटेंड। आपको खुद को लेवल पे लाना आना चाहिए, आपको अपने नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया हो, आपके हार्ट बीट बहुत ज्यादा एक्सीड कर रही हो। नो, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ एज वेल। लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाके या किसी के सामने प्रेजेंट करते हुए वी फील नर्वस टू एन एक्सटेंड एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, इंटरव्यू इज इंटरोगेशन, नो इट्स अ कन्वर्सेशन। जो दो कैंडिडेट्स या आप कह लें कैंडिडेट और पैनलिस्ट के दरमियान एक कन्वर्सेशन हो रही है, सो यू हैव टू कीप इट दैट वे। आप इंटरव्यू को कन्वर्सेशन समझें। आपका माइंडसेट जितना ज्यादा उसको लाइटर नोट पे आप लेकर आएंगे, उतना ज्यादा आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी काम डाउन रहेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास भी ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं, अगर मेंबर्स आते हैं टीम ज्वाइन करने के लिए, व्हाट आई लुक फॉर इज पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से आप लोग देखेंगे, आपके बैचमेट्स भी इवन होंगे, जिनका आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, बट उनका पोटेंशियल जीरो होता है, वर्किंग कैपेबिलिटी उनकी जीरो होती है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हम अगर हायर करने जा रहे हैं तो हम ऐसे भी लोगों को लेकर आते हैं जिनमें पोटेंशियल है और वो हमारे साथ काम करके ग्रूम होते हैं। ठीक है, तो उनका बिफोर और आफ्टर उनको खुद रियलाइज हो जाता है कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवरऑल इस सेशन के अंदर तीन तरीके से इस पूरे प्रोसेस को डील करेंगे, तीन स्टेप्स के अंदर। फर्स्टली, व्हाट यू हैव टू बिफोर एन इंटरव्यू। अगर ईमेल आती है कि कल आपका इंटरव्यू है, आपने क्या करना है, पैनिक करना है, सोना है, रोना है, क्या करना है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। सेकेंडली, ड्यूरिंग इंटरव्यू आपने क्या करना है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स को कंसिडर करना है। ठीक। थर्डली आता है आफ्टर इंटरव्यू व्हाट यू हैव टू डू, कि अच्छा अब इंटरव्यू हो गया, या तो आर हुआ या पार हुआ। ठीक है, वो आप इंटरव्यू देकर आते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है टू एन एक्सटेंड। ठीक है, या उन लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस आपको बता देते हैं या आपकी खुद की परफॉर्मेंस आपको पता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन एनालाइज कि आप सेलेक्ट होंगे भी या नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बिफोर इंटरव्यू प्रिपरेशन, व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, अब आप समझें कि मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफन ऑफन ऐसे ही होता है कि जब भी लाइक आप अप्लाई करते हैं उसके कुछ टाइम बाद, अराउंड 15 डेज बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, और 1 मंथ डिपेंड करता है, वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो जब आपको मोस्टली एक दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि कल आपका इंटरव्यू है, ज्यादातर यही जो है टाइमलाइन रखी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कांटेक्ट किया जा रहा है कि ईमेल आई है कि भाई आपका कल इंटरव्यू है, आपको कॉल आई है, अब आप क्या करेंगे, पैनिक करेंगे, क्या करना है आपने। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नो द कंपनी। जहां आपने अप्लाई किया होगा ऑब्वियसली आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कहाँ जो है अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी है, हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है। ठीक है, उसके बारे में नाम आप जानते होंगे, उसके काम के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब जब आपको इंटरव्यू के लिए उन्होंने कांटेक्ट कर लिया है तो अब आपने उनका गूगल पे जाएं, उनका मिशन खोलें, ठीक है, उनकी वेबसाइट खोलें, मिशन पढ़ें, कौन से आपने डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है उसके बारे में पढ़ें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रीसेंट वर्क, या फिर ऐसी क्या क्वालिटी है दैट मेक्स देम स्टैंड आउट। यानी कि इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं लेकिन आपने उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को चूज क्यों करा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है जो आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है।
वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर कंपनी। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में अगर आपसे आगे खान में आप फार्मेसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, रेजिडेंसी फार्मेसी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, दे विल आस्क यू व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी। तो फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप बता सकते हैं इट इज ASHP एक्रेडिटेड प्रोग्राम, और इंटरनेशनल फार्मेसी रेजिडेंसी प्रोग्राम है जो सिर्फ आगा खान करवा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ एंड आया हूँ। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट खास बात है, कोई एक खास बात जरूर होगी, वो आपने नोट कर लेनी है ताकि आप ऑन स्पॉट उनको जवाब दे सकें कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कंपनी। सेकेंडली आपके पास आता है जॉब डिस्क्रिप्शन, JD। ठीक है, अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे या आप देखते हैं कि जैसे अभी मैरिज स्पार्कल्स का जॉब्स एंड स्कॉलरशिप्स का चैनल जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है, तो आप वहां पे अगर जाके देखेंगे तो वहां पे डिफरेंट डेली बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप्स या जॉब्स शेयर होती हैं। ठीक है, उसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है, या फिर अगर आप जाके लिंक्डइन पे सर्च करते हैं या कहीं अप्लाई करते हैं लिंक्डइन के थ्रू, तो वहां आप देखेंगे कि डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। वहां पे वो लोग कंपनी के बारे में भी लिखते हैं, अबाउट द कंपनी। सेकेंडली जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपकी जॉब क्या होगी। ठीक, तो जब आप अप्लाई करने रखे लगे तो हमेशा उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रखें। ठीक है, जब जैसे ही आपको कांटेक्ट किया जाए, आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन में गए, उसमें जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं आपने उनकी डेफिनेशंस पढ़ लेनी है, उससे रिलेटेड जो टर्म्स होंगी उनको पढ़ के जाना है। ठीक है, रिक्वायर्ड स्किल्स वहां पे क्या मेंशन थे वो जरूर पढ़ के जाएं, उस एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड स्किल्स के अंदर आपने देखा कि अच्छा ये रिक्वायर्ड स्किल्स हैं अगर आपके पास, तो फिर आपने ये सोचना है कि अच्छा क्या मेरे पास वाकई ये स्किल्स हैं, और आपको वो डिफेंड करना आता हो। ठीक है, कि वाई आई एम सूटेबल फॉर दिस जॉब, और मैं इस डिस्क्रिप्शन के साथ कितना ज्यादा मैच करती हूँ। ठीक है, सेकेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने देखना है वहां पे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन ऑफिसर की है, आपने देखा अच्छा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो आपसे उसी रिलेटेड सवाल किए जाएंगे टू एनालाइज कि क्या आप वाकई कैपेबल हैं एज अ प्रोडक्शन ऑफिसर। और जो भी कीवर्ड्स हैं उनके आपने डेफिनेशंस याद करके चले जाना है, वो आपसे उससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, यानी उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं और आप उन पे मीट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो जो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि वो पूछते हैं भाई इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और क्या क्या कोर्स रिलेटेड क्या पढ़ा जाए, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ये सब याद करना होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है नो योर CV। ठीक है, अब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद जो चीज पढ़नी है दैट इज CV। यानी ऐसे मैंने बहुत से कैंडिडेट्स देखे कि जब वो वहाँ इंटरव्यू हॉल में बैठे होते हैं, सारे वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, एंड दे आर रीडिंग देयर CV एंड दे विल एनालाइज कि अच्छा यहाँ पे तो ये ग्रामर मिस्टेक हो गई है, ओ यहाँ तो ये टाइपिंग एरर हो गया था। वहां बैठ के उन्हें याद आता है एंड दे हैव नो ऑप्शन कि अब वो जाके कहीं से प्रिंट आउट करवा लें या कुछ। तो बिफोर द इंटरव्यू यू हैव टू मेक श्योर आपके पास जो सॉफ्ट कॉपी है या प्रिंट आउट है, आप उसको गो थ्रू करें, कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है, कोई ऐसा एरर तो नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, कुछ भी, बिकॉज ये बहुत बुरा इंप्रेशन क्रिएट करती है। ठीक है, दूसरी चीज स्किल्स। स्किल्स का मतलब ये कि आपने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका देखा होगा एक बहुत लंबी लिस्ट होती है स्किल्स की। ठीक है, लेकिन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे CV के अंदर लिखा हुआ है स्किल्स के अंदर लीडरशिप स्किल्स, सो दे विल आस्क मी कि ऐसा क्या सिनेरियो था जिसमें आपने ये लीडरशिप स्किल्स पोर्ट्रे किए या यूटिलाइज किए। ठीक है, तो आई कैन से दैट कि मैंने मैरिज स्पार्कल्स पे टीम लीड की हुई है, आई हैव दैट मच पोटेंशियल, मेरा ये एक्सपीरियंस रह चुका है, सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लीडरशिप स्किल्स इन माय स्किल्स सेक्शन। तो आपको ये पोर्ट्रे करना आना चाहिए, अपनी CV को डिफेंड करना आना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज आती है एक्सपीरियंस। ठीक है, जो आप एक्सपीरियंस सेक्शन में लिखते हैं आपसे उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई हॉस्पिटल मेंशन किया, तो आपसे पूछा जाता है अच्छा आपने इस हॉस्पिटल में काम किया, ओके,
तो आप ये बताएं कि वहाँ आपने क्या सीखा, आपने कौन से डिपार्टमेंट में वहाँ पे काम किया। अच्छा, आपने ऑन्कोलॉजी में काम किया, ओके। अच्छा, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स क्या होती हैं। अच्छा, फला कीमोथेराप्यूटिक ड्रग पेडियाट्रिक डोज बताया आप, ओके। आपने क्या जो है इंट्रावेनस एडमिक्सचर्स के बारे में बताया आपको, वो बताएं वो क्या होते हैं, क्या आपने वो बनाई है कभी, आपने ये किया है, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, उससे रिलेटेड वो आपसे सवाल पूछते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अगर जहाँ जहाँ काम किया है उससे रिलेटेड जो आपने वहां पे जो भी रोल प्ले किया, उससे रिलेटेड डिटेल्स को अपने माइंड में रखें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली जो है आंसर कर सकते हैं। थर्डली, अचीवमेंट्स, आपकी जो भी अचीवमेंट्स रही हैं आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स जो आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारे फार्मासिस्ट रह के, जैसे हम जो है फार्मेसी डिपार्टमेंट में इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर अगर काम किया हो तो उसके बारे में आपको आना चाहिए। रिसर्च वर्क अगर आपका है, पब्लिश वर्क है, उसके बारे में आपको बताना आना चाहिए। सर्टिफिकेशन, स्किल्स और सर्टिफिकेशन ऐसी चीज है जहाँ पे आके बहुत सारे कैंडिडेट्स आई वुड से कि जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। इन वे कि स्किल्स इररेलेवेंट लिख देते हैं और लाइकवाइज सर्टिफिकेशन भी इररेलेवेंट लिख देते हैं। यानी कि अगर मैं जा रही हूँ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल के लिए, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी सर्टिफिकेशन सारी उसी से अलाइन करती हूँ। ठीक है, मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए जा रही हूँ तो मैंने मैड स्पार्कस का कोई क्लिनिकल फार्मेसी इंटर्नशिप की हुई है या मैंने कोर्स किया हुआ है, तो मैंने वो मेंशन कर दिया, दैट इज गुड, दैट इज रेलेवेंट टू द सीवी। लेकिन ऑन द अपोजिट साइड लेकिन ऑन द अपोजिट साइड अगर मैं वहां पे ये मेंशन कर दूं कि मैंने कैनवा का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो वो चीज आपके लिए रेलेवेंट नहीं रहती, वो आपका कोई प्लस पॉइंट ऐड नहीं करती। तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी जो सर्टिफिकेशन का सेक्शन है और स्किल्स हैं, वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ जरूर अलाइन होने चाहिए। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर आप इन सब बातों के लिए, इन सब तरह के सवाल के लिए खुद को प्रिपेयर करके जाएं। अब नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के तो थ्योरेटिकल बेसिस पे सवाल के जवाब क्या देने हैं, इन चीजों के बारे में तो डील कर लिया। लेकिन अपियरेंस एंड फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है ड्रेसिंग। ठीक, यानी आपने प्रोफेशनल और अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करनी है, प्रॉपर आउटलुक के अंदर जाना है, आपको कॉन्फिडेंट पोस्चर मेंटेन करना है। ऐसे नहीं कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हो और आप बिल्कुल you are bending forward. No, you have to sit straight. You have to maintain the confident posture. नेचुरल आई कांटेक्ट, यहाँ मैं एक आपको टिप देना चाहूंगी कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो आई कांटेक्ट मेंटेन करने में बहुत नर्वस फील करते हैं। दे आर नॉट एबल टू लुक इनटू समवन्स आईज, ठीक है, या तो वो पेपर पलटते रहेंगे, पेपर को देखते रहेंगे, वो दीवारों को देखते होंगे, इधर उधर टेबल पे देख रहे होंगे। नो, दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, द इजीएस्ट टिप इज दैट कि आपने उस पर्सन की या तो आप फॉरहेड पे देखें, ठीक है, या आप आईब्रो पे देखें, या फिर आप एयर्स की तरफ देखें। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी पॉइंट फॉलो कर लें, सामने पर्सन को यही लगेगा आप आई कांटेक्ट करें। ठीक है, तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू नोट डाउन कि आपने आई कांटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, आपके सामने भी अगर कोई पर्सन हो जो आई कांटेक्ट नहीं करेगा और आपसे बात कर रहा है, तो यू फील लाइक आपको डिसरिस्पेक्टेड भी फील हो सकता है। और दूसरा ये कि सामने वाले का इंप्रेशन आपके लिए अच्छा नहीं रहता। कंट्रोल्ड हैंड मूवमेंट्स, यहाँ पे आप जैसे ये पर्सन की जो वीडियो है ये देख रहे हैं कि हैंड मूवमेंट्स आपकी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि जब कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बोलने आते हैं सामने स्टेज पे, तो ऐसा लगता है कि वो जैसे स्पीच नहीं, वो कोई डिबेट कर रहे हैं या वो लड़ने आए हैं। ठीक है, या फिर वो बिल्कुल हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, या फिर जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी डांटती हूँ वो ये कि स्टूडेंट्स अगर प्रेजेंटेशन भी देने आ रहे हैं तो वो लैब कोट के अंदर अपने हाथ डाल देते हैं या पॉकेट में, लैब कोट की पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हो गए हैं। तो दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये आपने चीज जरूर मेक श्योर करनी है कि आपके हैंड मूवमेंट्स आपके प्रॉपर रहें, आपको कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए। काम फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि आपको ऐसे नहीं कि अगर आप बेशक कितने भी नर्वस हो रहे हैं, बट योर फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी गुड। ठीक है, शुड लुक कॉन्फिडेंट। ठीक है, एंड नर्वस हैबिट्स, यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त रिंग घुमा रहे हैं, ठीक है, या आप जैसे यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं,
तो ये चीजें आपने अवॉइड करनी है, दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपका प्रॉपर पोस्चर होना जरूरी है। प्रैक्टिस, ठीक है। यानी कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए अब आपने करना क्या है, कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। हमने स्टार्ट में कहा प्रिपरेशन, हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। सबसे पहली चीज है प्रैक्टिस स्पीकिंग आउट लाउड। यानी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है कि कल मेरा इंटरव्यू है, अब मैं वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे वर्बली बोलूँ। कौन कौन से कॉमन आस्क क्वेश्चन है वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो उन्हीं सवालों के जवाब आपने अपने माइंड में रेडी करना है और जोर जोर से थोड़ा सा बोलने की आदत करनी है, ठीक है। उससे ये होता है कि आपके वर्ड्स फंबल नहीं करते, आपके आंसर्स माइंड में रेडी होते हैं, ठीक है। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये दी जाती है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर करें, दैट्स गुड एज वेल, ठीक है। सेकेंडली, टेक डीप ब्रीथ बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू रूम में एंटर होने से पहले आपने डीप ब्रीथ लेने हैं ताकि आपके वर्ड्स भी फंबल नहीं होंगे एंड योर नर्वस सिस्टम विल काम डाउन एज वेल। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज रिकॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है। यानी कि आपने समझना है कि भाई अच्छा आपके सामने जो कैमरा रखा हुआ है, फोन रखा हुआ है, ये एक इंटरव्यूअर है, ठीक है। तो अब आपने जो भी अपने पॉइंट्स रेडी किए हैं, पहले आपने मिरर के सामने प्रैक्टिस की, देन फोन रखा और आपने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, ठीक है। आप बोलते गए, आप बोलते गए, उसके बाद आपने स्टॉप कर दी रिकॉर्डिंग। अब आप बैठ के सुने, सुने आपने क्या बोला है, ठीक है। आपकी टोन क्या थी, आपका स्पीकिंग स्टाइल क्या था, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे नजर आ रहे हैं, कितनी क्लैरिटी है, क्या आप कैमरे में देख के बात कर रहे हैं या इधर उधर आपका आई कांटेक्ट जा रहा है, आपका पोस्चर सामने से रिकॉर्डिंग में कैसा नजर आ रहा है, ठीक है। ये चीजें आपने समझना है कि आप पैनलिस्ट हैं, ठीक है। और ये जो आप पर्सन की वीडियो देख रहे हैं, ये आपका कैंडिडेट है। क्या आप उसको अपनी कंपनी के लिए हायर करेंगे? अगर आपको लगता है यस, तो इसका मतलब कि ठीक है आप अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है नो, इसका मतलब आपको वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। तो जो हमारे पैटर्न स्पार्कल्स की टीम है जो वीडियोस रिकॉर्ड करती है कैमरे के सामने आके, आप लोगों ने देखा होगा इन लोगों का काम। तो दिस इज द की कि यहाँ पे वो लोग भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं एंड दे विल इन सम डेज दे विल रियलाइज कि उनके स्पीकिंग स्किल्स कितने इंप्रूव होते हैं। नाउ वी विल लर्न कि ड्यूरिंग इंटरव्यू व्हाट वी हैव टू डू, क्या क्या चीजों का, बातों का आपने ख्याल रखना है, किस तरीके से वी हैव टू एस एन इंटरव्यू। सो व्हाट हैपेंस इनसाइड एन इंटरव्यू, या फिर इंटरव्यूअर क्या ऑब्जर्व करता है आपके बारे में, ठीक है। आप जब इंटरव्यू रूम में एंटर हुए, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, तो वो सबसे पहले देखेंगे आप कैसे एंटर हुए हैं, ठीक है। आप स्लो वॉक करें, आप बहुत ज्यादा तेजी से, आप जब चल के आएंगे तो आपने पॉकेट में हाथ डाले हुए हैं, आपके फिंगर जो है वो आप उसको जो है वो दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब आपका वो देखेंगे पोस्चर, ठीक है। सो हाउ यू हैंडल प्रेशर, देन आपसे सवाल किए जाएंगे तो आप कितना क्लियरली अपनी बात को बोलना जानते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, हाउ यू थिंक बिफोर आंसरिंग। ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे, आप सवाल क्या पूछ रहे होते हैं वो जवाब क्या देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं अचानक से मैंने लेक्चर रोक के मैंने देखा वो तो सो रहे हैं, ठीक है, जोन आउट हो गए, तो मैंने लेक्चर रोक के उनसे अचानक से पूछ लिया कि आप बताएं कि मैंने अभी ये क्या बोला, दे विल फील लाइक अच्छा ये क्या पूछा, वो अचानक से वो घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने थिंक करना है, यू हैव टू थिंक बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन एंड हाउ प्रोफेशनली यू रिस्पॉन्ड, दे विल एनालाइज दैट एज वेल। हाउ कॉन्फिडेंटली यू प्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस नहीं है, नो इश्यू, लेकिन कॉन्फिडेंस कितना है अपने आप को पोर्ट्रे करने का, सो दिस मैटर्स अ लॉट। तो ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको चार तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्टली अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, आपसे इस बारे में पूछा जाएगा, यानी कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसके अलावा आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, आप वो इंट्रोडक्शन के अंदर बता सकते हैं। देन आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है। अगर आप सेम सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका एरिया क्या है, बिकॉज वो ये चीज़ जरूर ऑब्जर्व करते हैं कि आप कितनी दूर से आए हैं या कितने करीब से आए हैं, ठीक है। सेकेंडली फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे हमने देखा जो जेडीज के अंदर होगा या जो ऑर्गेनाइजेशन जहां आप जा रहे हैं उनके बारे में आपने सारी टेक्निकल टर्म्स को स्टडी करना है। थर्डली सीवी बेस्ड क्वेश्चन, जो हमने सीवी स्टडी करने का पॉइंट ऐड किया था,
तो आपसे सीवी से रिलेटेड सवाल किए जाएंगे। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जहाँ आपने इंटर्नशिप की, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए, जो आपने सर्टिफिकेशन ली, जो आपने रिसर्च वर्क किया, उन सब से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपके सामने कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए तो आपने प्रिपेयर्ड रहना ही रहना है। ठीक है, इन सवाल में से एटलीस्ट एक से दो तो आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू हैव टू आंसर इट, ये हम आगे देखते हैं। वाई शुड वी हायर यू, ठीक है, हम आपको क्यों हायर करें। तो अगेन वो जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, उसके स्किल्स से आप वो बता सकते हैं कि ये मेरे पास स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आई एम परफेक्ट फिट फॉर दिस पोजीशन। थर्डली, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप बता सकते हैं, ये बताता है कि आपने स्वॉट एनालिसिस अब तक किया है या नहीं किया है। वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगेन ऐसी कोई भी पॉइंट जो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी और उस हॉस्पिटल को स्टैंड आउट करवाता हो, आपने वो बताना है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, इस सवाल का ये मतलब नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको 5 साल तक नोट करेगी कि आप कहाँ तक पहुंचते हैं। नो, दिस शोज कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी अच्छी है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ आके फेल हो जाते हैं, वो तो सोचते हैं यार हमें तो अभी 1 साल का नहीं पता, 5 महीने का नहीं पता, 5 दिन का नहीं पता, वेयर डू वी सी आवरसेल्व्स इन 5 years। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है हमारे लिए। ठीक है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आप कुछ एक सॉलिड बात बता सकें उनको, ताकि दे विल फील लाइक अच्छा आपकी प्लानिंग अच्छी है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। एंड क्रॉस क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे आपने एक जवाब दिया, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग एट मैड स्पार्कल्स, ठीक है, वो बोलेंगे अच्छा मैड स्पार्कल्स में आप कौन से रोल पे अप्लाई जो है काम करती हैं। यू विल से आई एम वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर, अच्छा कितना टाइम हो गया, अच्छा वहां आपने क्या सीखा, आप किस तरह के ब्लॉग्स लिखती हैं। ठीक है, इस तरह से आपने बताया मैं फला हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वहाँ अच्छा वहाँ पे क्या आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, आप फला इंडस्ट्री में काम करते हैं, ओके आपने वहाँ कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, वहाँ आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आप वहाँ पे, और क्या क्या आपकी लर्निंग हुई, आप वहाँ से क्यों छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये वो क्रॉस क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछेंगे, एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। आपका आंसर इतना स्ट्रक्चर्ड हो कि उससे जो भी सवाल पूछा जाए आपसे, आपको उसको डिफेंड करना आना चाहिए। फिर आपके पास आता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये वो सवाल है जिसमें अक्सर स्टूडेंट दे डोंट नो व्हाट टू आंसर, हाउ टू आंसर। ठीक है, तो उनका सवाल होता है दिस इज मी आफिया एंड आई एम अ फार्मडी ग्रेजुएट, आई एम फार्मडी ग्रेजुएट, दिस इज ऑल, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, ओके दैट्स इट। ठीक है, ये दिस इज नॉट द इंट्रोडक्शन। इसका 3 पार्ट का फॉर्मूला है, आपने इसी के अकॉर्डिंग बोलना होता है। सबसे पहले आप बताएंगे प्रेजेंट, हाय आई एम आफिया, आई एम अ फार्मडी ग्रेजुएट, आई एम करेंटली वर्किंग एज अ लेक्चरर फार्माकोलॉजी। पास्ट बताएंगे आपने कहाँ से एजुकेशन ली, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जॉनसन जामशोरो, आई हैव दिस एंड दैट एक्सपीरियंस, आई हैव दिस एंड दैट इंटर्नशिप। ठीक है, ये चीज आपने पास बताया। देन आप जाएंगे फ्यूचर गोल्स, यानी कि आई एम वेरी एंथुसियास्टिक, अगर आप क्लिनिकल फार्मेसी के रोल के लिए आए हैं, अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी या कोई भी आपका जो जॉब के लिए आप जा रहे हैं। ठीक है, नो कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशन से लोग होंगे, बट आप जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड गोल बताएं। ऐसे नहीं कि आप आए हैं फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोजीशन के लिए, और आप बता रहे हैं कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग एंड आई लव टू राइट कंटेंट एंड ऑल एंड आई सी माई सेल्फ एज अ पब्लिश्ड ऑथर एंड दिस एंड दैट। नो, आपने अब तक कैरियर विजन अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन बताना होता है। तो दिस इज वर्ड कि जो इंटरव्यूअर होगा, जो पैनलिस्ट होगा, उसको पता चलेगा अच्छा यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर दिस पोजीशन। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है, हेलो आई एम आमना, अ फार्मडी ग्रेजुएट, पैशनेट अबाउट क्लिनिकल रिसर्च, आई हैव कंप्लीटेड, ये पास बता रहे हैं, आई हैव कंप्लीटेड हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी इंटर्नशिप्स वेयर आई डेवलप क्लिनिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। फ्यूचर क्या है, माई गोल इज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर एंड ग्रो इन क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास एंड फ्यूचर, ये चीजें बताना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल राइट, सो दिस इज टाइम फॉर एक्टिविटी। जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, इस वे में आपने इंट्रोड्यूस करवाना होगा, बट वेट, यू हैव टू, जो भी यहाँ पे अटेंडीज हैं, आप में से जितने भी लोग इस वक्त माइक अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है,
आप लोग यहाँ चैट बॉक्स में अपना नेम ड्रॉप करें, जस्ट योर नेम। आप में से कोई 3 लोग यहाँ पे पिक किए जाएंगे जो माइक अनम्यूट करके बताएंगे। ऑलराइट, तो फर्स्टली इकरामुल्लाह। मैं यहाँ पे 3 नेम्स अनाउंस करूंगी, आप तीनों यहाँ पे हमें आंसर करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्टली इकरामुल्लाह, देन वी हैव महनूर इमरान, एंड थर्डली अंबर फातिमा। ऑलराइट, तो हमने 3 नेम्स यहाँ पे नोट कर लिए। फर्स्टली इकरामुल्लाह। इकरामुल्लाह, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दें। Assalamu alaikum everyone. My name is Ikramullah. I am a final year PharmD student and uh, I'm final year PharmD student. I have graduated. My primary education is from Kohart, and my future goal is to contribute in a pharmacy industry as a good manufacturing practice manager. ऑलराइट, गुड अटेम्प्ट इकरामुल्लाह। नेक्स्ट मैंने नेम आई थिंक महनूर का लिया था। महनूर, आर यू देयर? Yes, ma'am. ऑलराइट, Assalamu कैन यू alaikum. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? यस, वालेकुम अस्सलाम। My name is Mahnoor Imran. I फॉर्म डी की सेकंड प्रॉफ की स्टूडेंट हूँ मैं, और माय फ्यूचर गोल इज फार्मासिस्ट, इंडस्ट्री फार्मेसी। ऑलराइट, यहाँ आपने पास का सेक्शन नहीं बताया। ऑलराइट, ठीक है, आप सेकेंड ईयर फार्मडी स्टूडेंट है, सो यू कैन नॉट इलैबोरेट इट फर्दर। ऑलराइट, दैट्स गुड। thirdly we have अंबर फातिमा। Yes, ma'am. ऑलराइट, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Myself, yes. Assalamu alaikum, everyone. Myself, Amar Fatma, and I am a student of DPharm third prof. I am excited to gain knowledge about pharmacy and related other fields. So, I live in Lahore and discuss. ऑलराइट, गुड अटेम्प्ट। ओके, सो वी आर डन विद द 3 कैंडिडेट्स। सो गुड अटेम्प्ट, आप लोगों ने ऑन स्पॉट इस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट किया, सो दैट इज व्हाट वी नो। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ था कि माय हैंड्स आर स्टिल शिवरिंग, इट्स कंप्लीटली फाइन टू फील लाइक दैट। और फर्स्ट फर्स्ट अटैम्प्ट इसी तरह के अगर आप अटैम्प्ट्स करते रहेंगे तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा यू विल फील लेस नर्वस अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव स्टार मेथड, यानी अगर आपसे इस तरह का कोई भी सवाल पूछा जाए, टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू फेस, या कोई ऐसा सिचुएशन के बारे में आप हमें बताएं, एग्जाम्पल ऑफ द टीम वर्क या लीडरशिप, तो आपने उन्हें किस स्ट्रक्चर फॉर्म में जवाब देना है। ठीक है, तो ये आता है स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। ठीक है, यानी कि सिचुएशन क्या थी, क्या मसला था जहां आपने जॉब की। ठीक है, टास्क क्या परफॉर्म किया आपने। ठीक है, एक्शन क्या लिया आपने, और रिजल्ट क्या मिला। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आवर टीम फेस डिलेड पेशेंट डॉक्यूमेंटेशन। I needed to help improve communication. I created a simple tracking sheet and coordinated with the team members. Documentation delays reduce significantly and workflow improve. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहती हूँ कि आई फेस्ड अ प्रॉब्लम इन द मैड स्पार्कल्स, के वहाँ पे वेबिनार के अंदर
ऑडियंस की इंटरेक्शन मुझे कम लगती थी, या मुझे ये सिचुएशन ये थी कि मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ वेबिनार दूंगी तो यहाँ ज्यादातर लोग सो जाएंगे मुझे सुनते सुनते, और मुझे लगेगा कि ये इंटरेक्टिव नहीं है. That is why I decided that I should include some activities that will engage the audience. And so I created such slides जिसके अंदर मैंने ऐसी एक्टिविटीज इंक्लूड की हुई थी, और I asked some members कि वो वहाँ माइक अनम्यूट करें. एंड द रिजल्ट वाज दैट कि बहुत से ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने ये ओवरकम किया अपना फेयर, एंड दे स्पोक इन माइक. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन पोर्ट्रे योर एग्जाम्पल. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्रेश ग्रेजुएट्स गाइड. यहाँ पे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि फ्रेश ग्रेजुएट होंगे. ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपना जो है इंटरव्यू के अंदर बताएं, हमें तो कुछ नहीं आता, हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है. और ये रोना तो खैर सबका ही होता है कि हर कोई कहता है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, मगर एक फ्रेश ग्रेजुएट को भी एक्सपीरियंस चाहिए, कौन देगा वो. ठीक है, तो दिस इज हाउ कि आपने क्या बात करनी है इंटरव्यू के अंदर. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंटर्नशिप. अगर आपने इंटर्नशिप्स की हुई हैं आप उसके बारे में बात करें. अगर आपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं अपनी फील्ड रिलेटेड उसके बारे में बात करें. अगर आपका वॉलंटियर वर्क है आपके ही जो है फील्ड के अंदर, तो आप उसके ऊपर बात कर सकें. आप क्लिनिकल रोटेशंस के ऊपर बात कर सकते हैं. ठीक है, अब तक कुछ नहीं किया, ना इंटर्नशिप की, ना प्रोजेक्ट्स किए, ना वॉलंटियर वर्क किया, लेकिन यूनिवर्सिटी की साइड से जो आपको हॉस्पिटल विजिट्स करवाए जाते थे, क्लिनिकल रोटेशंस थी. ठीक है, तो वो आप उसके बारे में बता सकते हैं, उन क्लिनिकल राउंड्स के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं आपने इन इन चीज़ों के बारे में बताना है. इससे ये होता है आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपके स्किल्स, आपका पोटेंशियल पता चलता है. ठीक है, अगर आप कहीं अटक जाएं, ठीक है, आपको सवाल का जवाब नहीं आ रहा, ठीक, हम क्योंकि आगे मॉक इंटरव्यू करने वाले हैं तो इसके लिए आप लोग रेडी रहें. तो इफ यू गेट स्टक, सो यू हैव टू पॉज बिफोर आंसरिंग. आपने रुकना है और फिर आपने जवाब देना है. ऐसे नहीं कि आपने जल्दबाजी में आपने गलत जवाब दे दिया और यू आर लाइक कि मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों की. ठीक है, थिंक कामली. आपको ऐसे सिचुएशन देके आपको ट्रिगर करके पूछा जा सकता है कि आपका गुस्से का पोटेंशियल कितना है. आप क्योंकि वर्क प्लेस पे हर तरह के इश्यूज हो सकते हैं, तो आपने कंट्रोल कितना कर सकते हैं. आप हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी कोई इशू हो सकते हैं, आपने उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. तो आपने सोच समझ के जवाब देना है. यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू डोंट हैव टू पैनिक, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो ऑब्वियसली आप आंसर्स गलत देंगे. ओके, अब इंटरव्यू एंड हो गया, सवाल जवाब हो गए, सारे हो गया. अब आपने क्या करना है, ऐसे नहीं बस जवाब देके खड़े होके बाहर आ गए. नो, यू हैव टू थैंक द इंटरव्यूअर प्रोफेशनली. आपने थैंक यू किया, अल्लाह हाफिज किया, एंड इट वाज नाइस हैव टू मीट यू. ठीक है, इस तरीके से आपने जवाब देना है. आखिर में एचआर के कुछ कुछ ऐसे आपको हॉस्पिटल्स या नजर आएंगे जहाँ पे वो पूछते हैं आपका कोई हमसे सवाल है तो पूछें. ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी सिचुएशन के लिए भी तैयार रहें जहां आप पूछ सकें अच्छा टाइमिंग क्या होगी, या मुझे कितने टाइम में कांटेक्ट किया जाएगा, क्या इस तरीके से व्हाट आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. इस तरह से आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है, इन केस अगर एचआर आपको कहे कि नाउ यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है, फिर आपने थैंक्स करके बाहर आ जाना है. ठीक, अब आपका इंटरव्यू हो गया, आपको पता चल गया है, माइंड में आपको आइडिया हो ही जाता है कि अच्छा आपका कितना अच्छा रहा, कितना बुरा रहा. अब आपने घर आके सोचना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ऐसे कौन से सवाल थे जिन पे आप स्टक हो गए. ठीक है, उनके लिए आपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना है. यू हैव टू स्टे पेशेंट while वेटिंग फॉर दी अपडेट्स. ऐसे नहीं कि बार बार आप उधर एचआर को ईमेल करते रहे कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आई. नो, वेट पेशेंटली एंड कंटिन्यू अप्लाइंग एंड इम्प्रूविंग. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है. सो दिस इज हाउ यू कैन एस एन इंटरव्यू. आई होप कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इज मॉक इंटरव्यू, लाइव मॉक इंटरव्यू. ओके, तो आप लोग यहाँ पे अपने नेम्स ड्रॉप करें, जस्ट योर नेम्स. आई विल अगेन सिलेक्ट सम ऑफ यू फॉर दी लाइव मॉक इंटरव्यू. वो लोग नेम ड्रॉप करें जो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं.
Okay, firstly we have Abdul Munaim, then Khansa Khan. Okay, Abdul Munaim, can you please unmute yourself? Yes, ma'am. Assalamualaikum. Hello. Hello. All right. Yes. Introduce yourself, please. Assalamualaikum. My name is Abdul Manaf, and I'm a founding student of third year. My education of matriculation is from Indian Public School, and I moved from KPK to Islamabad just for higher education. All right. Can you enlist any three of your skills that make you perfect for this role? I'm sorry, I can't hear you clearly. I'm asking, can you name any three of your skills जो आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो समझे कि आपने हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए अप्लाई किया है, तो कैन यू नेम एनी थ्री ऑफ योर स्किल्स जिसकी वजह से यू थिंक दैट यू आर परफेक्ट फॉर दिस पोजीशन? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल, जो कि किसी भी पेशेंट को सबसे पहले कंफर्टेबल करने के लिए, ताकि वो आपको इजीली अपना एक इशू बता सके, उसको आप रिजॉल्व करें। मतलब क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बैरियर जो आता है वो कम्युनिकेशन का ही आता है, लोग शर्म के बारे काफ़ी चीज़ें नहीं बता पाते। और दूसरी बात, एक पर्सनल जो प्राइवेट स्पेस, अगर हॉस्पिटल फार्मेसी में अगर फार्मासिस्ट सर्व कर रहे हैं तो वहाँ पे एक सेक्शन होना चाहिए, ऐसा मेरे ख्याल से, जिसमें आप अलग से उनसे पेशेंट से आप पूछ सकें उनके प्रॉब्लम्स के बारे में। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन ही नेचुरली काम आती है। दूसरा, आपकी एक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, मतलब विजिलेंस All right. ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। All right. Why you think that we should hire you? आपको क्यों लगता है कि हमें आपको हायर कर लेना चाहिए? बिकॉज आई थिंक कि मैं बड़े अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस फार्मेसी पे रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि All right. मुझे आप लोग। All right. क्या आप अपनी कोई दो स्ट्रेंथ बता सकते हैं? सबसे पहले तो टीम वर्क, और दूसरा अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो मुझे समझना मेरी कम्युनिकेशन थी। मैं किसी भी पेशेंट को किसी भी सिचुएशन में डील कर सकता All right. That's all. Thank you. That was good. That's great. हूँ। Next we have Khansa Khan. Khansa, are you there? Can you unmute yourself? Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. All right. Tell me about yourself, मेरी please. आवाज ठीक आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है. Ma'am, my name is Hansa Khan and I am fourth year pharmacy student from Multan. All right. ठीक है. Have you done any internship or you have any experience? Yes, ma'am. मैंने second year में एक pharmacy पे internship की थी 1 month. All right. आपने उधर कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की थी? मैम मैंने एक Okay. मतलब एक community pharmacy पे की थी. ओके. आप कोई 3 पॉइंट्स बता दें वहां पे क्या सीखा? कंसाइज 3 पॉइंट्स मैम कोई वहाँ भी. पे मतलब मैम वहाँ पे तो हम इस तरह होता था, मैं और मेरी फ्रेंड होते थे, तो वो हमें जो भी कोई पेशेंट वगैरह आता था ना, तो वो हमारे सामने ही पहले उनसे, अगर वो हमें बता रहा होता, वो बता रहे होते थे जैसे कि हमें कुछ मतलब डायरिया या कुछ भी, तो वो हमने मतलब वो फार्माकोलॉजी जब पढ़ भी रहे थे मेडिसिन वगैरह, तो वो पहले हमसे पूछते थे वहाँ पे कि अब इनको क्या देना चाहिए। तो उस वक्त फिर मतलब हम ब्रांड नेम्स तो नहीं जब तक याद थे, लेकिन वो मतलब जो सॉल्ट होता है उसका वो सब हम उन्हें ओके, ये मतलब बताते थे, और दूसरा डिस्पेंसिंग. के ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना। जी आप ये बता सकते हैं दैट यू लर्न अबाउट डिस्पेंसिंग, यू लर्न अबाउट पेशेंट कम्युनिकेशन, पेशेंट काउंसलिंग. ये दो तीन जी जी स्किल्स मैम। आप इनलिस्ट कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है. ओके, कैन यू एलैबोरेट लाइक अबाउट योर कैरियर गोल्स? आप फॉर्म डी के बाद अपना कैरियर कहाँ कैसे परस्यू करना चाहती हैं? मैम मैं अब इसके बाद मैं वैसे मैंने कभी भी जॉब का नहीं सोचा, क्योंकि
मुझे जॉब करना वैसे पसंद ही नहीं है। मुझे है कि मैं अभी मैं अपना बिजनेस करूंगी, मतलब अपनी फार्मेसी बनाऊंगी, या फिर मैं अगर जॉब करती भी हूँ तो मैं पाकिस्तान से बाहर करूंगी। हाँ जी। मतलब पहले एमफिल करने के लिए बाहर जाऊंगी और फिर उधर जॉब करूंगी, या तो पाकिस्तान में करूंगी तो अपना बिजनेस। ऑलराइट, दैट्स ऑल। थैंक यू कंसा। थैंक वेलकम मैम। ओके, तो आई होप दोनों के इंटरव्यू से आपको अंदाजा हुआ होगा कि किसने कहाँ पे क्या प्लस पॉइंट था किसका, और कहाँ पे किसका क्या नेगेटिव पॉइंट था। सो आई एम नॉट लाइक क्वाइट हाईलाइटिंग बिकॉज यहाँ पे वी ऑल लाइक आप सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये कि एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि आपने पॉइंट्स को ज़्यादा एक्सेजरेट नहीं करना। यहाँ दोनों कैंडिडेट्स थे, उन दोनों का ये इशू जो मुझे लगा, लाइक डोंट गेट इट टू मच पर्सनल, बट द मेन यहाँ पे हम सब सीखने आए, आप सीखने आए हैं, मैं सिखाने आई हूँ। ठीक है, तो वी विल आई विल हाईलाइट अबाउट इट। तो आपने अपने पॉइंट्स को एक्सेजरेट नहीं करना, आपने कंसाइज वे में सामने पोर्ट्रे करना है क्या बात है। आपसे पूछा जा रहा है 3 स्किल्स, तो जस्ट इन 3 स्किल्स। ठीक है, ये नहीं कि भाई यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी में पेशेंट काउंसलिंग के लिए नहीं दी होती स्पेस एंड ऑल दिस, आपने हाईलाइट नहीं करने ऐसे पॉइंट्स को। आप तो जस्ट अपनी क्वालिटीज बतानी है, सिस्टम की बुराई नहीं करनी, अपने बारे में बताएं। ठीक है, तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू कंसाइज वे में आप अपनी बात बताना जानते हो। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कवर इन एन इंटरव्यू। ओके, नाउ आफ्टर अटेंडिंग ऑल दिस सेशन एंड ऑल दी स्लाइड्स, अगर आपसे अब पूछा जाए, ओके, अगर आपसे अब पूछा जाए कि अब आप इंटरव्यू के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, ठीक है, 1 to 5, अब आप कितना प्रिपेयर्ड हैं। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। सो आई रियली होप सो कि आप लोगों ने यहाँ पे आज बहुत कुछ सीखा होगा, और ये जो सेशन था ये आप लोगों के लिए कहीं ना कुछ आई वुड से कि अगर यहाँ पे 100 कैंडिडेट्स हैं और उनमें से 10 मेंबर भी यहाँ मेरी बातों को 10% भी अगर पिक कर लेते हैं तो ये मेरे लिए सक्सेस है। ठीक है, तो आई रियली होप सो कि कहीं ना कहीं आप लोग इंटरव्यू में अपेयर होंगे, और अपेयर होने से पहले आपको मेरी कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी जो क्लिक करेगी। ठीक है, आप चाहे सेकंड ईयर के हैं इस वक्त, थर्ड ईयर के हैं, बट यू विल स्टेप इनटू द प्रोफेशनल लाइफ। चाहे आप जाके अपना कैरियर परस्यू करना चाह रहे हैं, आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, बहुत डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन होगा, बट यू विल फील लाइक कि वो मैम थी, किसी ने हमें गाइड किया था, पता नहीं कौन थी, बट देयर वाज अ पॉइंट इन दैट। ठीक है, तो इंटरव्यूज आर नॉट जस्ट अबाउट बीइंग परफेक्ट, आप परफेक्ट तरीके से जाएं और हर चीज प्रेजेंट करें। नो, इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग योर स्टोरी विथ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ठीक है, सो योर अपॉर्चुनिटी मे बी जस्ट one interview away. And I really wish you all confidence, growth, and success in every interview ahead. So thank you so much to each one of you जो एक्सक्यूज आज मी यहाँ मैम। पे आए। और जी एक्सक्यूज मी मैम, मेरा क्वेश्चन है। जी जी, आप अम, पूछें। मैम अगर मैम जैसे अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, और जो मैंने अपनी सीवी बनाई हुई है तो मैंने उसका भी मेंशन किया हुआ है। तो अगर मैं कहीं हॉस्पिटल में या कहीं भी अप्लाई करती हूँ तो क्या मैं अपनी सीवी में से वो चीजें अपने जस्ट ये फार्मेसी से अलावा जो मेरे स्किल्स हैं वो मैं हटा के फिर अपनी सीवी अपडेट करके फिर वहां पे दूंगी? जी जी बिल्कुल, जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की कोई जॉब आती है उसके लिए अगर आप सीवी दे रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आपने जस्ट ग्राफिक रिलेटेड स्किल्स और सर्टिफिकेशन रखनी है, और एक्सपीरियंस भी उसी से अलाइन हो। और अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर के लिए जा रहे हैं तो आप स्किल्स के अंदर कैनवा या ग्राफिक डिजाइनिंग लिख सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है, जो भी सर्टिफिकेशन आ रही है, उसको रिमूव कर दें बिकॉज वो इरेलीवेंट हो जाता है। एक्सक्यूज मी मैम। जी ओके मैम, थैंक यू। हेलो जी जी, आप सवाल पूछें। मैम, ये हम सीवी में जो जितने ये वेबिनार होते हैं ना, मेट स्पार्कल्स में, मैम ये हम लिख सकते हैं मैम?
जी, अगर यहाँ के डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं और वो आपकी पोजीशन के साथ अलाइन कर रहे हैं तो आप वो जरूर लिख सकते हैं। जी मैम। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं कि आपने वेबिनार के बारे में लिख दिया कि मैंने ये वेबिनार अटेंड किया एंड सो ऑन। आपको उससे रिलेटेड अगर सवाल पूछा जाए तो भी आपको आता हो कि आपने उसमें क्या सीखा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई सवाल है तो पूछें। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो सर्टिफिकेट है ये डाउनलोड प्रोसीजर क्या है इसका? जी, मेडिस स्पार्कल्स का जो चैनल है दैट इज रिलेटेड टू दी जॉब्स एंड स्कॉलरशिप्स, तो उसमें शेयर किया जाएगा लिंक। आपने उस लिंक पे जाना है, वहाँ पे यूट्यूब की वीडियो का वो लिंक होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक सर्टिफिकेशन के लिए लिंक दिया होगा। वहाँ पे क्विज अटैम्प्ट करना है जो आपने यहाँ पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे और आपने वो अटैम्प्ट करके आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया है कि लाइक जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएटेड लाइक अभी जो 10th सेमेस्टर के जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट किए हैं, उसके बाद वो अपने ये फॉर्म डी का जर्नी फील्ड के अंदर किस तरीके से आ सकते हैं। लाइक मैम मैंने जितने भी रोस्टर्स देखे या फिर जो भी कंपनीज हायरिंग करती हैं उसमें मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा होता है कि वी हैव रिक्वायर्ड मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन। तो एज अ फॉर्म डी रिसेंटली लाइक रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स, तो हम किस तरीके से अपने इस जर्नी को आगे परस्यू कर सकते हैं। काइंडली इस पे आप थोड़ा सा बात कर लें। ये देखें, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं अगर वो फार्मेसी रिलेटेड हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर काम करना चाहते हैं, उन्हें अब तक कैरियर स्टार्ट करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके सिटी के अंदर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की पोजीशन आएगी, उसके लिए फ्रेश ग्रेजुएट्स लेते हैं। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसीज के अंदर भी कुछ आती हैं, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि 1 ईयर इंटर्नशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। अब उसके अंदर उन्हें चाहिए ही फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने अपना ट्रेनी रोल से स्टार्ट करना होता है, आप डायरेक्ट फार्मासिस्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इन केस आपके सिटी में वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप किसी भी अपने एरिया के या सॉरी, आप अपने एरिया में किसी भी टर्सरी केयर हॉस्पिटल में, आई वुड से टर्सरी केयर, ठीक है, क्योंकि टर्सरी में जो आपका एक्सपोजर होता है उतना आपका प्राइमरी सेटिंग में नहीं होता। ठीक है, आप वहाँ जाएं, वहाँ उनके एचआर से बात करके आप बेशक अनपेड इंटर्नशिप करें, 4 4 वीक्स 6 वीक्स की। ठीक है, आपको उनका सेटअप पता चलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा समहाउ, और फिर आप अगर वहाँ सेटल हो गए ना, दे कैन ऑफर यू अ पोजीशन। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि यू कैन एंटर इनटू अ रोल विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कैन वी ऐड आवर लिंक्डइन लिंक ऑन सीवी? यस यू कैन ऐड, वहाँ पे आपका सीवी में लिंक ऐड होता है लिंक्डइन का, वो आपका डिजिटल पोर्टफोलियो है। अच्छा, यहाँ पे पूछा है ड्यूरिंग इंटरव्यू, देखिए सीवी लेके जाते हैं और बाकी आपके कुछ खास डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, उसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह ये खास रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन जैसे आपकी डिग्री हो गई या डिग्री नहीं आई भी तो ट्रांसक्रिप्ट ले गए आप, तो ये चीज़ें आप ले जा सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें इरेलीवेंट होती हैं। अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर वो आपसे फर्दर, जैसे आपका डोमिसाइल हो गया और आपका बाकी जो है डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो आपसे रिक्वायर करते हैं ताकि आपकी फाइल बन जाए। फॉर सेकेंड ईयर हाउ कैन वी स्टार्ट आवर इंटर्नशिप? अच्छा, सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि वेट टिल थर्ड ईयर ताकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आ जाए, या आपका सेकेंड ईयर जब एंड हो जाए तो फिर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इंटर्नशिप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नेम मैडिस स्पार्कल्स के नाम से ही है। अच्छा, सीवी में एक्सपीरियंस के सेक्शन के अंदर सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस में आपने सर्टिफिकेट्स ऐड नहीं करने, सर्टिफिकेशन का आप अलग से सेक्शन बना के और उसमें आप ऐड कर सकते हैं, बट अगेन सर्टिफिकेशन जो भी हो वो रेलेवेंट ऐड करनी है।
कॉन्फ्रेंसेज और रिसर्च राइटिंग ये आपने अलग से ऐड करें, लेकिन एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ ऐड नहीं होती। सीवी में लिंक नहीं, आप ड्राइव वगैरह का क्यों ऐड करेंगे? वो क्लिकेबल, अगर आप प्रिंट फॉर्म में दे रहे हैं तो वो क्लिकेबल नहीं होता, और ड्राइव का लिंक अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन अगर आपका यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं और आपसे पोर्टफोलियो मांगा है और आपने जो है ड्राइव का लिंक दिया है, ठीक है, तो वो आप एज अ पोर्टफोलियो दे सकते हैं, लेकिन सीवी के अंदर ऐड करने का कोई यूज नहीं है। अच्छा, प्रोफेशनल सीवी कैसे बनानी है वो उसका अलग वेबिनार हो सकता है। मेडिकल कंटेंट राइटिंग, ओके मैम, ये इंटरव्यू वाला ऐड कर सकते हैं जी, ये आप इंटरव्यू का भी ऐड कर सकते हैं, मगर आपको ये आना चाहिए कि आपने इसमें सीखा क्या। देखिए, वर्ड पे आप बनाएं और प्रिंट आउट तो आपने पीडीएफ करना होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सबमिट करवा रहे हैं सीवी, तो आप वर्ड फाइल सबमिट ना करवाएं, आप पीडीएफ करवाएं। ड्रग इंस्पेक्टर का क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, वो अलग से जॉब्स आती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। हाउ वी स्टैब्लिश आवर सीवी, सीवी अलग इस्टेब्लिश होती है। डॉक्यूमेंट वगैरह को लिंक्डइन को सीवी में कैसे ऐड कर सकते हैं? देखिए, लिंक्डइन का लिंक ऐड करने का सीवी में बहुत आसान और चीज़ ये होती है कि अब जो एटीएस फ्रेंडली फॉर्मेट्स हम बनाते हैं उसमें सबसे ऊपर सीवी के आपका टाइटल आ रहा होता है, यानी आपका नाम आ रहा होता है, और उसके नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल और आपका लिंक्डइन, ये तीन चीज़ें हैं जो आना ज़रूरी हैं। एड्रेस हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आना ज़रूरी है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बेसिकली अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपका बिहेंस पे पोर्टफोलियो बना हुआ होता है, यानी आपका सैम्पल वर्क होता है, ठीक है। तो अगर आप फार्मासिस्ट या हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं तो पोर्टफोलियो का कोई यूज़ नहीं है। Third year, if you don't have any certificate, so how can you write or what you can write? अच्छा, अगर आप थर्ड ईयर के हैं तो देखें, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी कहीं ना कहीं मार्जिन दिया होता है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके कंपटीशन में कोई ऐसा पर्सन आ जाता है तो फिर वो उनको ही प्रेफर करेंगे, लेकिन थर्ड ईयर की बेसिस में तो ये अंडरस्टूड है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। और सर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है, तो आप ऑनलाइन कोई कोर्सेज करके कोई आपके जो यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करें, उनके अंदर सर्टिफिकेट्स लें। कोई ऐसी वर्कशॉप्स हो रही है ऑन साइट, आई वुड हाईली रिकमेंड ऑन साइट एज वेल, तो उसके अंदर जाएं, सेमिनार्स अटेंड करें, और एग्जीबिशंस होते हैं उनको अटेंड करें, तो ये चीज़ें आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अच्छा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे आप इंटर्नशिप करना चाहती हैं फ्रॉम भागलपुर, तो अच्छा आप ऐसे कर सकती हैं कि आपके नियर बाय, आई डोंट नो अबाउट भागलपुर, बट अगर आपके नियर बाय एरिया में जो भी लाइक हॉस्पिटल अवेलेबल है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने जो है करीब से करीब हॉस्पिटल्स की तरफ अगर जाएं तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप करना चाह रही हैं, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे इंटर्नशिप बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए इंटर्नी तो वो हायर नहीं करते, लेकिन आपको एज अ हॉस्पिटल ट्रेनिंग फार्मासिस्ट अपॉइंट करते हैं, और वो अनपेड ट्रेनिंग्स होती हैं ज़्यादातर हॉस्पिटल के अंदर, तो वो कर सकती हैं आप। कैनवा इज बेटर और वर्ड? देखें, वर्ड इज मच बेटर, आप वर्ड पे कर सकते हैं। हाउ कैन वी कैरी ई सर्टिफिकेट्स इन इंटरव्यू? ई सर्टिफिकेट आपने इंटरव्यू में लेके ही नहीं जाने, लाइक देखिए, ये जो भी अगर आप सेशंस वगैरह अटेंड कर रहे हैं, इसके आप सर्टिफिकेट क्यों लेके जाएंगे? इंटरव्यू के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि क्या लेके जाना है, सीवी लेके जाए, ठीक है, इसके अलावा आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ठीक है, आप अपना इंटर की मार्कशीट लेके चले जाएं, आप अपनी एनआईसी की कॉपी ले जाएं, ठीक है। अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है तो आप अपनी 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स ले जाएं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने पास ही रखें अनटिल और अनलेस इट इज आज के आप सबमिट करवाएं, तभी सबमिट करवाएं, अदरवाइज सबमिट ना करवाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत सी सीवीज आती हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सिलेक्टेड होते हैं, तो बाकी डेटा इधर उधर कुछ ऐसे भी मैंने इदारे देखे हैं जहाँ पे मिसप्लेस हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। इसलिए ये ई सर्टिफिकेट्स को प्रिंट आउट करवा के ले जाने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप अपॉइंट हो जाते हैं और आपका सारी आपकी फाइल बनाई जाती है,
तब रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आपको कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक या पर्सनल, तो यानी आपके डोमिसाइल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी हो गए, ठीक है, और आपके एकेडमिक यानी डिग्री रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो आप लेके जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपकी ऐसी कोई ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लिनिकल रिसर्च की सर्टिफिकेशन है फ्रॉम डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, तो फिर आई कैन ब्रिंग दैट इंटरव्यू दैट सर्टिफिकेट along with my documents, क्योंकि वो एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट कंसिडर होगा। सीवी आपने खुद बनाना बिल्कुल। This criteria is required to select। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर के अलग क्राइटेरिया है, यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड लर्न देयर एज वेल। सीवी एंड कवर लेटर, इसके ऊपर एक अलग सीवी एंड रेज्यूमे, उनमें भी बहुत डिफरेंस है। कैनवा इज बेटर, ओके, ये मैंने बात बता दी है कि वर्ड ज़्यादा कन्वीनियंट है। वर्ड पे अगर आप करें तो वर्ड पे आप बना लें सीवी मेकिंग, सीवी के लिए। और एटीएस फॉर्मेट का देखें, कीवर्ड्स का रोल होता है, तो उसके ऊपर अलग वेबिनार हो सकता है। आई कैन नॉट लाइक कम्प्लीटली एक्सप्लेन इट हियर। यहाँ पे ज़्यादातर सीवी रिलेटेड सवाल क्यों हैं? अच्छा, और कोई सवाल है अगर इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप लोग पूछ लें, देन वी कैन वाइंड अप। तो आई रियली होप सो कि आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपने कुछ ना कुछ तो यहाँ से सीखा ही होगा जरूर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay. Thank you so much, Dr. Afiamin, for such an informative and engaging session. You have delivered incredibly knowledge for us so that we ऑल राइट, आई थिंक के होस्ट डिस्कनेक्ट हो गई है ड्यू टू सम इंटरनेट इश्यूज। ऑल राइट, आई रियली होप सो दैट दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। लास्टली जो सर्टिफिकेशन के लिए आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा इन मैरिज स्पार्कल्स जॉब्स एंड स्कॉलरशिप्स चैनल। तो आप वहाँ जाके यूट्यूब का वीडियो का लिंक होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको सर्टिफिकेशन के लिए लिंक दिया होगा। आपने क्विज अटेम्प्ट करना है एंड ऑन सक्सेसफुली अटेम्प्टिंग द क्विज, ओनली ऑन सक्सेसफुली अटेंडिंग द क्विज यू विल गेट द ई सर्टिफिकेट। तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज।